Okay, while you do that, first of all, thank you for this opportunity, and I welcome all the participants here today. Quick overview about ISO standard. Basically, ISO 14001 is once again international standard that helps organization manage their environmental responsibility in a systematic way. Basically, the focus is on reducing environmental impact, compliance with the laws and regulation, and overall improving sustainability. जिन दिनों में I made aware, yeah, I was given the flavor of ISO 14000, so more focus was on environmental side. But since then things have changed, and as Miss Maha has explained कि जो standard है वो I think January के start में release हो गया था, और hardly 2 weeks ago it got implemented, and you have till end of I believe 2029 तक का time है, you have to do that transition. एक चीज मैं highlight करता जाऊँ from day one कि it's not a revolution, it's an evolution. So इसके लिए definitely I believe there will be some sort of transition orders. इसमें you'll have to do the gap assessment, उसके बाद you have to make sure कि कितना हम comply कर रहे हैं and where do we have to go. So from there I would like to move back to the Maham, I can't see the deck. Can you please Yes, please, 1 second. Sure. So while you do that, I'll give you a quick overview of this latest version. देखिए 14,001 2025 current version है, कोई new version, full version yet आई नहीं है, but there are minor upgrades, alignments with ISO standard structures जो कि चल रहे हैं. So it's still the 14,001 2015 ISO standard is still the globally accepted framework used by organization, और वही scope है कि environmental risk and improve performance. Key principles भी they're all the same, nothing new has added. Environmental protection is there, legal compliance, continuous improvement, pollution prevention, life cycle thinking. Life cycle thinking पे approach जो मेरी understanding has slightly changed. You have to think beyond your factory gate, या जो आपके organization के दरवाजे हैं उससे अब आपने बाहर का सोचना है. If you, I don't know how many of the participants are linked with textile और पाकिस्तान की स्पेशली इस रीजन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो आपकी जो यूरोपियन यूनियन के कस्टमर्स हैं, दे आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिंजेंट ऑन दीज थिंग्स, क्योंकि जो न्यू रेगुलेशंस आ रही हैं, स्पेशली नेट जीरो के जो चैलेंजेस और जो पॉलिसीज वेस्ट में आ रही हैं, यूरोप में बात कर रहा हूँ, तो वी आर डेवलपिंग प्रोडक्ट्स फॉर देम जो कि इस यहाँ बन के वहां बिकने. आपकी वेरी सिंपल, मैं उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वो एनवायरमेंटल की वेस्ट रिडक्शन, स्कोप 1 2 3 मिशन जो हैं, आप फार्मर्स से धागा लेते हैं, कॉटन लेते हैं, कॉटन से धागा बनता, धागे से जीन्स बनती है, जीन्स को डाई करके प्रिंट करके लेबल लगा के आप वेस्ट में बेचते हैं. तो वो उनकी अब ये रिक्वायरमेंट भी है अपनी मार्केट में बेचने के लिए, उसको एंड तक देखना है. और बाय डिफॉल्ट क्योंकि वो इस रीजन में बनती हैं, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश रीजन में, तो वो डाउन टू द वेरी लाइन एक्सपेक्टेशंस वही हैं जो कि वेस्ट में. तो उस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल दैट आई बिलीव कि जो 14,001 है, इट इज वेरी क्रूशियल टू मेक श्योर कि आपकी अलाइनमेंट है वो बड़ी crystal clear हो from day one. So again, it's a gold standard for EMS. PDS cycle follow करने, plan, do, check, act, very straightforward. The new requirement है that is about planning and managing changes. आप लोगों का जिसको भी ISO 45,000 का पता है, और उसमें भी अराउंड क्लॉज 8 में मैनेजमेंट ऑफ चेंज की क्लॉज है. इट्स अबाउट यू हैव टू मेक श्योर कि हम कोई भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं, इट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड, वेल मैनेज एंड कम्युनिकेटेड विद ऑल स्टेक होल्डर्स. सो दैट इज वन ऑफ द चेंजेस के प्लानिंग एंड मैनेजिंग चेंजेस. ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नाउ डिटरमिन द नीड फॉर एंड प्लान फॉर एनी चेंज दैट वुड अफेक्ट द इंटेंडेड आउटकम ऑफ द EMS, both internal and external sources. Linking this with my previous statement के now you have to think it beyond the gate के farmer पहले मुझे पानी let's say 20 लीटर लगा के 1 टन की मुझे क्रॉप दे रहा है, अब उसके बढ़ते जा रहे पानी ज्यादा लग रहा है, क्यों लग रहा है, तो आपने सारे रिस्क कैप्चर करने हैं. So this is one of those approaches to think about. I also tells you how to think, not what to think. So it's one of those framework जिसमें आपकी mental mapping होती है चीजों को approach करने. Can I have the next slide please? Okay, this is the change which is I would say no longer expected, is here now. So देखिए बड़ा क्लियर करते हैं explicit assessment of climate change. Climate change की बात कर रहे हैं, biodiversity, pollution and resource availability is now required as part of context. पहले ही नहीं होता था. You need all these things के इसका environment पे क्या होगा, biodiversity पे, pollution पे, resource availability पे क्या effect होगा. Environmental management scope must reflect a full life cycle perspective on environmental impacts. रॉ मटेरियल एंड एंड ऑफ साइकिल वर्क. मैंने पहले बात की कि फार्मर्स से लेके कस्टमर जो कि यूरोप में आपका कोई टेक्सटाइल का ब्रांड है, हाउ आर यू मेकिंग श्योर कि सारे रिस्क एड्रेस है. की डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी अवेलेबल एज फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन. दिस कैन बी अ चैलेंज स्पेशली पाकिस्तान के. आप फार्मर के पास जाते हैं, हाउ डू यू नो कि उसने जो बीज लगाया उसने कितना पानी लगाया. तो इट्स नॉट अबाउट कि वो डॉक्यूमेंट पूरे करने, बट इट्स दैट यू आर अवेयर
थ्रू दिस ISO चेंजेस कि हमने ये चीजें एट वन स्टेज, देखिए आज नहीं तो कल नहीं तो परसों 2019 उसके एंड बियॉन्ड दैट यू हैव टू बी you will be doing this, and the sooner you are on board, the sooner you're aware of the expectation of your customer, I think that gives you the competitive edge in this market. Lastly is broader environmental consideration and life cycle thinking integrated into the foundational context analysis. वही बात उसी चीज के हम इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि जो लाइफ साइकिल थिंकिंग है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पहले होता था कि आप कहते थे मेरे एक फैक्ट्री, मेरा एक प्लांट है, इसके मेरे रिफाइनरी है, इसके ये इम्पैक्ट हो सकते हैं कि रिलीज हो जाएगा, पानी आ जाएगा, नेक्स्ट वाई जेड, थोड़ा इट वाज वेरी डिटेल्ड बट स्टिल अब वो उससे भी आगे की एक्सपेक्टेशंस आ गई. यू हैव टू थिंक बियॉन्ड द फैक्ट्री गेट. मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की अलाइनमेंट भी बहुत जरूरी है अंडर द न्यू ISO 14,001 के जो चेंजेस हैं. If your MD or CEO can no longer sign a policy statement and consider their job done, active, visible environmental leadership is now available. This is the change too. देखिए environmental policies पे sign हो जाते थे, अब what can we do to make sure to show that dedication के changes are there? For instance, top management responsibilities are strengthened with clear expectation environmental stewardship. देखिए environmental stewardship के बाद यूरोप यूनियन जो टेक्सटाइल में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बड़ा अच्छी तरह पता होगा कि वो बहुत पहले से इस पे शोर डाल रहे, काफी एक एजेंडा चल रहा है कि व्हाट गोल्स आर देयर और उसको 2030 और 2050 तक के जो गोल्स हैं वो क्लियर करते हैं. और अभी से दे आर रिपोर्ट सेइंग वी विल मिस दैट इफ यू डोंट टेक एक्शन नाउ, वी विल मिसिंग दोस गोल्स. तो हमारे कस्टमर के पास से वो प्रेशर आ रहा है क्योंकि उसने वो चीजें अपने मार्केट से बेचनी है. उनकी जो बेसिकली यूरोपियन यूनियन के जो कस्टमर्स का प्रेशर है दैट ट्रिकल डाउन ऑल द वे टू अस एज वेल. अब उसी तरह एग्जांपल लीडरशिप मस्ट एक्टिवली शेप मिशन विजन एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज अराउंड द EMS. गोल स्मार्ट होने चाहिए, आपके कोई डेडिकेटेड बजट एलोकेशन, इट हैज टू रिफ्लेक्ट यार यू आर टेकिंग स्टेप्स टू डिलीवर दोस गोल्स. एनवायरमेंटल पॉलिसी मस्ट कमिट टू commit to improving all relevant aspects, not just effectiveness. पहले थोड़े से effectiveness की तरफ होता था, now it's more about relevant aspects, thinking in more of a broader life cycle assessment approach. Proactive integration of environmental management system requirements into core business processes is mandatory. जिस तरह 45,000 requirement थी, it has to be part of the core business processes. This is how we do business. It's not just a policy, we're doing more than that. And change number 3, which is change management brand. देखिए change management की बात मैंने पहले एक ही this is a definitely a new standalone new sub clause कि पहले जिस तरह changes आती थी we were definitely documenting it, लेकिन अब वो requirement है. Standard कहता है कि ये तो आपने करनी ही करनी है. जिस तरह 45,001 की clause है कि आपने change management को लेके चलना है कि कोई भी change होगी सब aspect उसके effect stakeholders will either sign this off or they are made aware, or at least they are consulted. Organization must plan and manage any change that would affect the EMS intended outcomes. ये अगर इसमें मैं एक लफ्ज चेंज कर दूं तो ये 45,000 से लिंक कर रही है. Organization must plan and manage any change that could affect EMS की जगह लिख दूं EHS, HSE, health and safety intended outcome. ये तो बिल्कुल वैसे. Change trigger include new equipment, new process and new supplier organizational restructuring. वो मेरी पहले वाले कमेंट को बड़ा इसने इन्फोर्स किया कि न्यू सप्लायर्स में चेंज आ गई. आप किसी जगह से मैं बार बार टेक्सटाइल एग्जांपल्स देते रहूंगा. दिस इज वेरी हॉट टॉपिक स्पेशली इन टेक्सटाइल. इट्स नॉट ओनली स्पेसिफिक टू टेक्सटाइल लेकिन इट्स बियॉन्ड दैट. लेकिन टेक्सटाइल एग्जांपल इसलिए बड़ी एक पीक एग्जांपल है कि एक्सपेक्टेशन वेस्ट की है, बनना यहाँ पे है, बिकना वहाँ पे है. तो वहां से अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इमरजेंसी सिचुएशंस आर नाउ क्लियरली सेपरेटेड फ्रॉम abnormal operations with specific planning requirements of each. उसी तरह की अगर कोई चेंज आ रही है आपकी कि एक तो ऑपरेशनल चेंजेस होती हैं कि माइनर ट्वीक्स डे बाय डे जो जिनका ऑपरेशन से एक्सपीरियंस है, they can say कि okay this is change in recipe, change in operating conditions, etc. This is beyond. This is talking about you are introducing a new chemical. आपकी फैक्ट्री में एक न्यू डाई केमिकल, एक न्यू इंग्रेडिएंट ऐड हो रहा है. हैव यू डन द रेलेवेंट द ड्यू डिलिजेंस टू कि इसके एनवायरमेंटल या लाइफ साइकिल असेसमेंट की भी है कि ये प्रोडक्ट का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, एयर, लैंड, वाटर, ये सारी चीजें अब स्टैंडर्ड का जो न्यू सब क्लॉज है वो मैंडेटरी कहते हैं. चेंज 4, डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन clarified. Documentation and communication expectations are clearer and more consistent across the EMS. अब आपको it's not just signing a policy, auditor आता है, customer आता है, you say कि look we have a policy, it says कि हम environmental के बड़ा ख्याल करते हैं, हम land water emissions कम करेंगे. ठीक है आप कर रहे हैं, आपने लिख दिया आप कर रहे हैं, कैसे कर दिखाएं, क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या थी, कहाँ से ट्रिकल डाउन हुआ, कहाँ से ये किक ऑफ हुआ, इस टाइप की चीजें.
specifies exactly what must be documented what versus what must simply be available as evidence. ये मैंने अभी 10 सेकंड पहले जो कमेंट किया उसी को ये रिइंफोर्स कर रहा है कि आपने पॉलिसी तो साइन कर दी, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रीजन कहाँ से है। तो ये सिस्टम है, ये अब आप मोर लाइक अब वो बता रहा है कि आपने किस तरह लेके चलना, हाउ डू यू थिंक एंड हाउ डू यू रिएक्ट अबाउट टू मेक श्योर कि वट एवर द थिंग्स यू आर सेइंग दे आर बैक्ड बाय सम क्लॉज, सम रेफरेंस, some requirement, some legal or other statutory or maybe a customer requirement. Internal audits must now have a defined objective, not just a scope and criteria. Compliance है या नहीं है, नहीं, it's a defined objective कि ये करना है, क्या चेक करना है, कि हमने चेक करना है कि XYZ emissions हमारे बायोमास बॉयलर्स की एक्सीड हो रही है या नहीं, स्पेशली फॉर कस्टमर जो कि स्कोप 1, 2 एंड नाउ 3 पे भी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो आर दोज इंटरनल ऑडिट्स कवरिंग दोज डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, आर वी विद इन दोज लिमिट्स? सो ISO इज डेफिनेटली टॉप ऑफ ऑल दीज थिंग्स, स्पेशली द न्यू रिक्वायरमेंट आ रही है, और आई कैन सी हाउ दिस विल ट्रिकल डाउन स्पेशली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान एंड अदर इंडस्ट्री जिनके customers पाकिस्तान से बाहर हैं। Competence management cycle is more clearly defined, identify, ensure, verify, रिटेन एविडेंस। आई थिंक जो शुरू के मैंने कमेंट किया था वो 4 पॉइंट्स को मैंने एक लाइन में समराइज कर दिया था कि देखिए कॉम्पिटेंस मैनेजमेंट साइकिल इज मोर क्लियर डिफाइंड, आइडेंटिफाई करना, इंश्योर करना, वेरीफाई करना, रिटेन एविडेंस, जो कि इस सॉर्ट ऑफ PDA साइकिल का एक सब ट्रिकल ही है कि वहां से ही ड्राइव हो रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको आप आइडेंटिफाई करना है, इंश्योर करना है हो भी रहा है नहीं, वेरीफाई करना है जो किया है वो ठीक है नहीं, और उसका एविडेंस रखना है। तो इट्स जस्ट नॉट जस्ट टिकिंग बॉक्सेस, इट्स मोर देन दैट नाउ। तो the expectations are getting stringent day by day. Change number 5, it is also under clause 8, supply chain now in scope. Supply chain से मुराद from end to end के आपका supplier, material supplier, आपके farmers हो सकते हैं जो आपको raw material दे रहे हैं। इस examples देखते हैं। Operational control now explicitly includes the environmental influence of suppliers and partners. Suppliers and partners में आप देख सकते हैं आपके सर्विस प्रोवाइडर्स, मटेरियल प्रोवाइडर्स एटसेट्रा, सारे इसमें कवर हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसीडर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एट ऑल स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड लाइफ साइकिल। तो वो LCA वाली रिक्वायरमेंट एक आ रही है, वी कैन सी द फ्लेवर ऑफ इट, टचिंग किया है। हमें लाइफ साइकिल असेसमेंट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज वेयर द क्लॉज सेज के लुक यू नीड टू मेक श्योर कि लाइफ साइकिल जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है, मैंने बात की पहले वाली बात है कि आपका सर्विस प्रोवाइडर, मटेरियल प्रोवाइडर्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस एक्सप्लिसिटली बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। वो लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नेट, बिल्कुल वाटर कम पानी लगा के यूज किया है, कम रिसोर्सेज, कम एनर्जी से और कम इमिशन से यूज किया है, आपका वेस्ट में एक प्रोडक्ट बिक रहा है, एक शर्ट बिक रही है। अगर मैं इसको ट्रैक डाउन करता हूँ डाउन टू योर फैक्ट्री एंड बियॉन्ड दैट, मेरे पास एविडेंस है या नहीं, या हम सिर्फ एक ग्रीन वॉशिंग का हम कहते हैं कि यार मेरा प्रोडक्ट ग्रीन है, ओके कैसे ग्रीन है, मेरी पॉलिसी पे लिखा है कि मैं कम पानी और कम इमिशन से मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, ओके वो कैसे हो रहा है? We don't know. So now ISO is catching up with all these things. Last 2 points are very straightforward, which is I think expected. Sorry, can you please I was just trying to cover the last 2 points on this slide. Stronger alignment required between supply chain partners and organizational EMS objectives. ये clear है, I've covered this. And emergency preparedness must directly reflect, identify environmental risk. कि emergency point of view से आपके environmental risk कवर हो, वही बात देखें मैंने आई थिंक जो शुरू में 4-5 बातें कर दी है ना, वो ISO ने वही चीजें उसको एक एक करके बता रहा है कि जेनेरिक ना हो, पॉलिसी साइन की हुई है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा और कैसे हो रहा है पता नहीं। तो ये तो वो कॉल ऑफ फेल में बड़ा फर्क होगा। सो दिस इज नाउ ISO, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, डोंट कोट मी ऑन दिस, नाउ दे आर सेइंग कि ओके जो भी आप कर रहे हैं इसको जरा थोड़ा बताएं कि कैसे कर रहे हैं। ये एक थोड़ी सी एवोल्यूशन आ रही है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। परफॉर्मेंस वैल्यूएशन इंप्रूवमेंट स्ट्रक्चर। अब जो आप कह रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, पानी कम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। क्लॉज 9 जो है, मैनेजमेंट रिव्यू स्ट्रक्चर इनटू 3 सब क्लॉसेस, इनपुट्स, प्रोसेस एंड रिजल्ट्स। इनपुट्स हम ये कर रहे हैं, प्रोसेस ये हमारे चेंज हो रहे हैं या ये चल रहे हैं, और रिजल्ट्स ये आ रहे हैं। एक्स से A से Z पे गए हैं, कैसे गए हैं, A to Z गए हैं, BC से लेके एट द ऑन XYZ तक कैसे गए हैं थ्रू द प्रोसेस। रिजल्ट्स क्या आए हैं, इतना वाटर बचा है, इतनी सेविंग्स की हैं, एंड डायरेक्टली इसकी इकोनॉमिकल एक एडवांटेज भी है कि आई कोट मी ऑन दिस वन कि ऑर्गेनाइजेशन हु आर ISO सर्टिफाइड दे क्लेम टू बी एंड दे हैव शोन दिस इन रिजल्ट्स के 10 to 15% सेविंग्स, monetary savings report करते हैं। Environmental performance and EMS effectiveness must now be explicitly evaluated and is not assumed. I think that's अब वो कह रहे हैं कि जो आप पहले assume करते थे कि फार्मर हमें कह रहा है कि मेरा पानी इतना ही लगा है, चाहे वो 3 टाइम उस पर लगा के आपको
बीज तैयार करके दे रहे हैं फॉर द कॉटन एंड ऑल द वे टू द कपड़ा एंड ऑल दैट, इट शुड बी उसको उसको जांच पड़ताल करनी है, अब अज्यूम कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर क्लॉज 10.1 की बात कर रहा है कि 14,001 2025 से रिमूव हुई है, जिसमें वो कहता है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू क्लॉज 10.2 एंड 10.3। दिस मोर लाइक अ लैंग्वेज चेंज, एक एडमिन चेंज आईएसओ के अपने स्टैंडर्ड के अंदर से ही आ रही है। एचएलएस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाई लैंग्वेज लेवल स्टैंडर्ड। बेसिकली ये है कि जो हमारे 9001 भी है, 14,000 हो गया, 50,001, 27,001 मेक्स इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम इजियर टू ऑडिट। ये एचएलएस वो स्टैंडर्ड होते हैं जिनके पहले 6 क्लॉज ना, समटाइम्स 4, समटाइम अप टू 6 क्लॉज की रिक्वायरमेंट सेम है, एक ही चीज की बात कर रहे हैं। तो इन सब को आप मर्ज करके ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजमेंट सिस्टम कह सकती है कि दिस इज आवर मैनेजमेंट सिस्टम। पहले 3, किसी की 4 या किसी की 6 क्लॉजेस सेम है, तो दैट कैन हैव सिमिलर एविडेंस, को सिमिलर रिक्वायरमेंट है, आपको अपना स्कोप डिफाइन करना है, रिस्क डिफाइन करने हैं, तो आपका एक ही रिस्क रजिस्टर बन सकता है। इसमें आप हेल्थ एंड सेफ्टी के, क्वालिटी के, एनवायरमेंट के रिस्क रजिस्टर कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ऑन दिस एचएलएस हाई लेवल स्टैंडर्ड्स में अलाइनमेंट जिसकी चल रही है। ट्रांजिशन रोड मैप फॉर सर्टिफाइड कंपनीज। अच्छा, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मैंने बता दी, ये चेंजेस आ गई हैं, ये एक्सपेक्टेशंस डिफाइन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो आप कर रहे हैं वो बताएं कैसे कर रहे हैं। आपके क्लेम्स जो इतने बोल्ड क्लेम्स हैं कि पानी कम हो गया, बिजली कम हो गई, हमारा स्कोप 1 2 3 साफ है, हम लोग और कम एनर्जी लगा के और अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? डू यू हैव दैट कैपेबिलिटी? तो दैट्स गुड, आप वेल डन, यू आर कंट्रीब्यूटिंग। कि एनवायरमेंट तो सबको अफेक्ट करती है, तो उसके लिए लेट्स से 14 पिछले से स्टैंडर्ड से अब वाले पे आप आ गए हैं, तो आपने अपने आप को कहा कि जैसे हम न्यू स्टैंडर्ड पे सर्टिफाइड हैं, ओके गुड। तो ट्रांजिशन के लिए आपने एक ट्रांजिशन ऑडिट भी करवाया होगा, डेफिनेटली करवाया या करवाने जा रहे हैं। हाउ विल दैट गो अबाउट? इट्स अ वेरी 5 प्रोसेस स्टेप। पहले तो देखिए गैप एनालिसिस करने की, जो 14,000 स्टैंडर्ड कह रहा था पहले, जो 2015 की जो आपने सर्टिफाइड कंपनीज है, जो ऑडिटर्स हैं, हम एक स्टैंडर्ड पे खड़े हुए थे, अब अपडेट कॉन्टेक्स्ट आ गए, इसमें कहाँ से कहाँ जाने। बिल्ड क्लॉज 6.3 देखिए, क्रिएट योर चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, इवन अ सिंपल वन, कोई से भी चेंज आ रही है, मटेरियल, रेसिपी, सप्लाई, रॉ मटेरियल, उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है। एनी सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल चेंज मस्ट नाउ गो थ्रू अ फॉर्मल ईएमएस चेंज प्रोसीजर। मैं एक फैक्ट्री का ऑपरेशन मैनेजर हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार आप इसमें ये केमिकल डाल रहे हैं, केमिकल ए, आप डी डालेंगे, उसकी प्राइस सस्ती है, वो कहेंगे फौरन डाल दें। लेकिन मुझे उसको जस्टिफाई करना है कि मैं क्यों डाल रहा हूँ एनवायरमेंटल। अगर आप कह रहे हैं एक तरफ कि मैं एनवायरमेंटल ISO 14,001 से सर्टिफाइड भी हूँ, और मेरे साइड डिसीजन एनवायरमेंटल के जावी से भी देख के लेता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए लेके सस्ता था, यू कैन जस्टिफाई है। देखिए आप सस्ते चीज के पीछे जा रहे हैं कि मैं प्राइस पे जा रहा हूँ और वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो यू कैंट हैव बोथ दिस थिंग। तो ये क्लॉज जो पार्ट नंबर 3 है, बिल्ड क्लॉज 6 नंबर 3, ये उस चीज को डायरेक्टली कैप्चर कर रही है कि इट कैन बी वन ऑफ दोस थिंग। हाँ, अगर दोनों हो जाए तो और भी अच्छा है। केमिकल ऐसा आ रहा है जो कि सस्ता भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, तो व्हाई नॉट। फिर देखिए अब ट्रांजिशन का स्टेप है रिटेन ऑडिट टीम, सॉरी रीट्रेन, माय बैड, ऑडिट टीम। अब ऑडिट टीम जो है जिसने गैप एनालिसिस करना, ऑफ कोर्स दे हैव टू बी लीड audit certified. You need to update your internal auditors against the 2026 version. जो आपकी organization के auditors पिछले audit पर train हैं, they must be trained on this new change. They must be made aware कि क्या changes आ रही हैं, how to identify those gaps, how to bridge those gaps, and how to deliver, those expectations and objectives once those gaps are identified. Last है align transition audit. जो आपका transition audit है, coordinate your transition audit with your next audit schedule में, सर्विलेंस ऑडिट में कर लें, मिनिमाइज डिसरप्शन एंड अवॉइड एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, आप करवाएं एंड दिस इज लाइक अ 5 स्टेप रोड मैप ऑफ योर ट्रांजिशन ऑडिट फॉर सर्टिफाइड कंपनीज ऑलरेडी सर्टिफाइड। लीड ऑडिटर अपग्रेड, देखिए ये मोस्टली जो हमारा इवन 9001 14,001 इट्स यूजुअली मैनेज्ड बाय द QA guys, QA QC managers and lead auditors. I happen to work outside of Pakistan, so the country I was working on is so where HSC के जो होते हैं प्रोफेशनल, my part of my background also includes health, safety, environment. We used to manage these things, but in Pakistan it's mostly QA and QC managers. They are in the lead auditor. So not to panic and not to cause any alarms. आपका जो ISO 2015 का lead auditor qualification है, ये आज भी valid है. So it's just there is a bit of a change, standards are getting certified against जो आप करते आ रहे हैं, ये जो आप अभी तक करते आ रहे हैं, उसको खत्म भी नहीं कर रहे. You have time, 3 साल का टाइम, ऑलमोस्ट 3 साल का ज्यादा का टाइम दिया हुआ है, 2029 तक का. But the standard you are certified against was replaced 10 days ago. ये मेरी कॉलीग मिस हमने भी शुरू में बताया कि वो
इम्प्लीमेंट हो गया तो कुछ चेंजेस आई हैं, सो यू जस्ट नीड टू बी क्या चेंजेस आ रही हैं। आई एम श्योर जो आप कंपनी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दे हैव देयर ऑडिटर्स जो खुद ऑडिट हो रही होती हैं, यू हैव टू बी अलाइन कि हमने उनको क्या बताना है या हमने उनको कैसे जस्टिफाई करना है ये चेंजेस की, व्हाइल योर कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन आर क्लेमिंग टू बी ISO 14000 सर्टिफाइड, और अब तो 2026 की वर्जन भी आ रही है। Your clients and employers will start asking whether you are certified 2026 version pay. The questions is coming. Be ready to, answer it before it arrives. So again, this is that moment to, be ahead of the rest of the crowd. Align yourself, get your certifications, and lead that change. There's career protection and first mover advantage is definitely there, and there's an efficient transition. So this is a bit about the lead auditor program, the upgrade. So this Maham is over to you on this slide, please. Okay, thank you so much, Hassan, for telling us all the changes. So now I'm talking to our participants. Now it's your time to take your action today. अगर आप लोग QA QC देख रहे हैं अपनी कंपनी की, आर यू द HSE मैनेजर्स और यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द HSE ऑफ योर कंपनी, सो इट्स द टाइम कि आप अभी से अपना कंपनी का गैप एनालिसिस कराएं। या अगर आप लोग अभी लीड ऑडिटर्स हैं और आप लोग नए वर्जन पे खुद को अर्ली मूवर एडवांटेज लेना चाह रहे हैं ट्रांसफर करने के लिए, सो लेट्स डू इट टुडे। अगर आप लोग अपनी कंपनी के गैप एनालिसिस में हमारा अर्ली बर्ड डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अभी ट्रांजेक्शन का मैसेज करें। और अगर आप अपना लीड ऑडिटर सर्टिफिकेट अपग्रेड करना चाहते हैं, लाइक चेंजेस, इट्स नॉट अ फुल 5-day कोर्स लाइक अ लीड ऑडिटर कोर्स। अगर आपका अभी पिछला लीड ऑडिटर सर्टिफिकेट अभी भी वैलिड है तो आप एग्जाम्पलर ग्लोबल की ट्रेनिंग लेकर अपना वर्जन जो है वो ट्रांसफर करवा सकते हैं। बाकी डिटेल्स हमारी टीम आपको सेंड कर देगी, सो जस्ट मैसेज अस auditor, we will send you all the details. So just want to mention one final thing कि हम BGMC में हम आपको एक एडवांटेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा BGMC टेक पोर्टल जो अभी लाइव है, उसमें हमारे ऑडिट की आपको लाइव ट्रैकिंग मिल सकती है। जो भी डॉक्यूमेंट है हमारे आपकी तरफ से हमें कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आप हमें उस पोर्टल पे ही प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम कोई डॉक्यूमेंट रेज करेंगे, हमारे ऑडिटर्स जैसे कोई एनसीज वगैरह है या फिर उसके बाद रिपोर्ट है आप लोगों की या फिर आप लोगों का लाइव सर्टिफिकेशन स्टेटस है, आप उसमें लाइव ट्रैक कर सकते हैं। ये बहुत सी हैसल को कवर कर लेता है कि अभी ऑडिट के स्टेज पे है, ऑडिटर किस दिन आएगा, ऑडिट किस दिन स्केड्यूल होगा, सो वो एक कंप्लीट आपको ट्रैकिंग प्रोवाइड करेगा। सो जो लोग हमारे साथ अभी रजिस्टर करेंगे उनको ये BGMC टेक पोर्टल फॉर द लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये सेशन की रिकॉर्डिंग हम आपके साथ शेयर कर देंगे। जो लोग हमें रजिस्टर किया था जिन लोगों ने लेकिन वो किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर सके, तो हम सबके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के कोई कुलीग या फ्रेंड जिनको ये सेशन देखना चाहिए था लेकिन उन्होंने मिस कर दिया है, तो आप बिल्कुल उनके साथ ये रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। तो आर वी हैविंग एनी क्वेश्चन? जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? जी जुबैर बोलिए। इसमें मैं जानना चाह रहा था कि सर कंस्ट्रक्शन में हमारे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, उसमें जो मेजर कोई 1-2 एस्पेक्ट जो हैं उसमें थोड़ा सा गाइड। कंस्ट्रक्शन में साइट के ऊपर जो है वो हाई राइज बिल्डिंग के या फिर जो है वो वैसे जो है 1 से 2 स्टोरी बिल्डिंग के लिए जो हमारा कंस्ट्रक्शन का स्कोप हो, तो दोनों में सर कोई मेजर जो है एस्पेक्ट को क्या कंट्रोल करने चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट जिससे मे बी वो ब्रीच ना हो रही हो, या फिर वो मेजर इम्पैक्ट है, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट सर जो हैं। ओके, देखिए कंस्ट्रक्शन में अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, और ISO 14001 अब लाइफ साइकिल की बात उसने बड़ी स्ट्रिक्टली की है कि अब लाइफ साइकिल असेसमेंट होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन में। आपका सबसे पहले आई वुड थिंक ऑफ द रॉ मटेरियल, उसमें आगे सीमेंट, आयरन, rebar जो सर and all that. अब now I would be asking those questions कि if I'm reporting कि I am मेरी कंपनी में ये कंस्ट्रक्शन करता हूँ, I would be asking questions। ये ISO मुझे बता रही कि यार ये चीजें आपने इम्पैक्ट करनी, कि यार ये चीजें हो, ये इसका रिस्क रजिस्टर बनाओ, चीजें मुझे पहले पता हो। अब मेरी सीमेंट की जाहिर सी बात है, जो मुझे सप्लायर मैंने अपने गेट से बियॉन्ड सोचना है, मुझे सीमेंट जो मेरा जहाँ से भी मैं ले रहा हूँ, क्या वो अपनी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उनके रजिस्टर हुए में, लेट्स से कि वो अपनी स्कोप 1, 2, 3 ये जो एमिशंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो बट दे आर क्लेमिंग टू बी कि हम अपना काम, वी हैव एनवायरमेंटल पॉलिसी इन प्लेस एंड ऑल दैट, क्या हम वो कर रहे हैं। नंबर 2 अगेन मैंने बात की कि आपका रीबार होगा फॉर इंस्टेंस, उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगेंस्ट वो इज कमिंग फ्रॉम अ फर्नेस एंड हाउ डीप वी वांट टू गो, कि यार उनकी क्या स्कोप की रिक्वायरमेंट्स है, आर दे डूइंग देयर रिक्वायरमेंट्स, फुलफिलिंग देयर कमिटमेंट्स, उनके गैप एनालिसिस हुए हुए। So you need to think about in between these lines. So once again, ISO tells you
हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। तो आईएसओ की रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि आपकी ये एक लीगल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सोचे कि आपने अपने लीगल एस्पेक्ट सारे कवर करने हैं। हो सकता है कि आप एक दो चीजें छोड़ दें, और आपने कहा ना कंस्ट्रक्शन से हो सकता तो क्या चीजें आएंगी। आई थिंक द क्वेश्चन शुड बी कि क्या चेंजेस ओवरऑल आएंगी। मैं एक बार बार टेक्सटाइल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आई हैव वर्कड इन अ टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर, और बड़े there was very lots of pressure in sustainability, green numbers and all that। बताएं हमें कि आपके स्कोप 1 2 3 मिशंस क्या है, एक जीन्स बनाने में कपड़ा पे कितना पैसा पानी कितना लग रहा है, आपके कार्बन इमिशंस कितनी है पर किलोग्राम के प्रोडक्ट पे। तो उस यू नीड टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। आई थिंक कंस्ट्रक्शन में भी अभी जिस तरह आई हैपन टू वर्क ऑन सम डेटा जो कि ग्रीन बैंकिंग का आया हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज किया था कि दे आर आस्किंग बैंक्स कि जिनको हम लोन देते हैं वो अपने ना ग्रीन बैंकिंग का डेटा सबमिट करें। अभी इसकी इन्फोर्समेंट नहीं हुई, लेकिन ये काफी पहले से काफी पुरानी चीज चल रही है, लेकिन इस पर कोई स्ट्रिंजेंटली इतना कोई जांच पड़ताल स्टेट बैंक की तरफ से नहीं हुई कि अब जो हम लोगों को लोन देंगे हम ये भी देखेंगे कि वो कितना उसमें एनवायरमेंटल इंस्पेक्ट ग्रीन है। और उसमें क्लॉज था कि क्या आपकी कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, और लिखा हुआ था क्लियरली 14,001, क्या उसमें सर्टिफाइड है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ, लेट्स से आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर जो घर बनाता है, और मैं स्टेट बैंक से मैं बैंक से लेता हूँ जिसके पीछे स्टेट बैंक है कि मैं आई नीड मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए क्योंकि मैंने मार्केट में घर बना बना के मैं बेचता हूँ। आई डोंट नो कि कल को हो जाएगा, 10 साल बाद हो जाए, कभी भी ना हो, या हो भी जाए, वी नेवर नो, क्योंकि वो बड़े पहले से आया हुआ है। तो उसमें देयर वाज अ क्लॉज कि इज योर कंपनी आईएसओ 14000 सर्टिफाइड, यस, इफ आई से यस तो मेरा स्कोर नीचे आता था, लाइक इन मोर पॉजिटिव वे। यार नीचे जाने से मुराद कि वो जितना ऊपर होगा उतना बुरा था, तो यू नीड टू लाइक ब्रिंग इट डाउन। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। सो अगर वी आर थिंकिंग कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे ये फोकस करें, नहीं, इट्स बियॉन्ड दैट। इट कैन बी एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी फूड चेन, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, रिफाइनरीज, ऑयल एंड गैस, इट कैन बी एनी ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं करती कि वो कुछ स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनाइजेशन किस relevant standards बना रही है। These are management standards, they're also voluntary and you have to make sure that they're all implemented, you know। अब इसका फायदा क्या होता है कि ये वही बात होगी कि एक कस्टमर आपके पास आएगा, आप पहले से ही एक लेवल पे रेडी हैं, you're ahead of the crowd to answer their questions। This is what the approach ISO takes। I hope I've ओके, answered the question। या थैंक यू। और किसी और का कोई क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो। Assalamu alaikum. I have a question. यस प्लीज उमर। The question is that for organizations already certified to ISO 14001 2015, how difficult do you expect the transition to 2026 to be? I would say आधा आंसर मैं करूंगा, आधा आंसर माम करेगी। Why would I? Because मैं ऑडिट्स में बैठा हुआ भी हूँ और ऑडिट्स करवाए भी हैं, मतलब ऑडिट्स किए भी हैं और मैंने करवाए भी हैं। ट्रांजिशन देखें, अभी 6 चेंजेस आएंगे, यू कैन सी किस तरह वो एक्सपेक्टेशन जा रहे हैं, कह रहे हैं एक्स से वाई पे जाने तो गैप एनालिसिस हो जाए। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन हाउ ट्रांसपेरेंट आर दे करंटली? एज एन ऑडिटर आई नो कि व्हाट आई एम क्लेमिंग, जो मैं मेरा जो सारा ऑडिट में मैं कल को मेरा ऑडिट है, आई नो माई सेल्फ, मुझे खुद को पता था मैं कितना प्रिपेयर हूँ, कितनी चीजें मैंने कही हुई हैं, कितनी चीजें मैंने फर्ज की हैं, फर्ज से मुराद लास्ट मिनट बनाई है, कितनी चीजें असल में हो रही, शायद डॉक्यूमेंट नहीं हो रही। तो मेरी नज़र में विद माय एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन ऑडिटर आई वुड से कि ये आपकी अपने ऊपर है। दैट गैप एनालिसिस इसलिए कह रहे थे, जो ट्रांजिशन स्टेप था हम शोड कि दैट गैप एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन यहाँ पे जो आप खड़े हैं कि आप खुद कितने कंप्लाइंट हैं। जितने कंप्लाइंट आप 2015 से होंगे उतनी यू विल बी इन अ गुड शेप टू द फॉर द 2026 चेंजेस। In terms of the difficulty, I think mom can comment on that. How has been her experience on that? Yes, thank you. Actually, that's why we are asking you to go for the gap analysis. Time अभी लग रहा है कि 2029 तक जाएगा, अभी बहुत टाइम है, अभी हम सर्टिफाइड हैं, तब की तब देखी जाएगी। लेकिन ऐसा है कि अगर हम अभी से अपने प्रोसेसेस को कन्वर्ट कर लें, हम अभी देख लें कि जो चेंजेस आई हैं उस पर हम कितने कंप्लाइंट हैं, क्या गैप्स हैं, उनको अगर हम अभी से टाइमली आइडेंटिफाई करके अपने वो प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो आई थिंक 2029 तक इट वुड बी रियली इजी टू अडॉप्ट टू दैट ट्रांजिशन। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइएगा। मोर ओवर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर चैट में ऐड किया है,
तो अगर आप लोग गैप एनालिसिस की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें टेक्स्ट कीजिए। अगर आप अपना लीड ऑडिटर सर्टिफिकेट अपग्रेड की तरफ जाना चाह रहे हैं तो भी हमें ज़रूर बताइए, ताकि आप ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल कर सकें। और वही वाली बात है कि ज़्यादा इजी हो सके ये ट्रांजिशन। जितना डिले होगा उतना मुश्किल होगा, जितना जल्दी इसकी तरफ जाएंगे उतना ही इजी है। So I think हमारे पास और questions नहीं है. So thank you very much everyone for joining us today. Special thanks to our guest speaker, Mr. Hassan Nazir. Thank you for your information and all the. So thank you everyone for joining us, Thank you. for your time. Thank you. Allah Hafiz. Thank you everyone for your time. Allah Hafiz. I think, ma'am, we can end the recording as well.